تھا کہ وہ بے خبر تھے، اور تو حالات یہاں اس لیے پہنچ چکے ہیں کہ پیپلز پارٹی انفارمیشن بیسڈ کارروائی نہیں کر رہی، ڈس انفارمیشن بیسڈ کارروائیاں کر رہی ہے۔ پیپلز پارٹی کا سندھ کی حکومت کا سارا عمل جو ہے وہ لگتا ہے کہ جو ڈس انفارمیشن ان کو دی جاتی ہے اس کے تحت ہو رہا ہوتا ہے۔ اور میں سب سے پہلے جو بات کرنا چاہوں گا کہ جس انداز سے گزشتہ روز دو چلے ہوئے کارتوس، سندھی میں کہتے ہیں چھٹل کارتوس، ایک تو نااہل، اور نااہل بھی کس وجہ سے ہوا؟ لاڑکانہ والا، وہ بزرگ تھے، میں ان کی عزت کرتا تھا، بہت عزت کرتا تھا کھوڑو صاحب کی، لیکن جب ان کو کل وزیر اعظم پاکستان کو اور گورنر سندھ کے خلاف جھوٹ بولتے ہوئے، ارے بھائی اگر آپ رمضان شریف میں موڈ میں ہوتے تو ہمارا تو قصور نہیں ہے نا؟ یہ شرم آنی چاہیے کہ رمضان شریف میں بھی ان کی آنکھیں دیکھو، اور بات کر رہے ہیں تعلیم کی، پیچھے الماریوں کو تالے لگے ہوئے جہاں یہ بات کر رہے تھے، یہ یونیورسٹیز کو سنبھالتے ہیں۔ تو یہ چلے ہوئے کارتوس ایک حیدرآباد میں نیند سے جاگتے ہیں اور جو دل کرے معذرت کے ساتھ وہی بولنا شروع کر دیتے ہیں، بے پر کی ہانکنا شروع کر دیتے ہیں، اور دوسرے نثار کھوڑو صاحب جو شخص نااہل ہو اور وہ بھی جھوٹ پہ، چھپانے پہ، میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا چونکہ ہم اتنے گھٹیا نہیں ہیں کہ کچھ چھپانے پہ نااہل ہونے والا ایک چھٹل کارتوس، ایک چلا ہوا کارتوس کل ہمارے وزیر اعظم کے خلاف گندی زبان استعمال کرتا ہے، گھٹیا زبان استعمال کرتا ہے۔ اور دوسری بات چانیو صاحب بھی، ان کی بھی نوکری اسی کے اوپر چل رہی ہے، جو پتہ ہوتا نہیں ہے ہانکنے شروع کر دیتے ہیں۔ میں اس پہ کہتا ہوں کہ ان لوگوں کو اپنے الفاظ واپس لینے چاہیے، اور جس انداز سے گورنر سندھ کے خلاف ایک بات کا بتنگڑ بنایا، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ بات ہے ہی نہیں۔ آج ٹی وی کے نمائندے خاور حسین یہاں موجود ہیں، ابھی میں نے اس سے پہلے بھی اور میں ابھی بھی پوچھوں گا ان سے، آج ہم نے کل سے مانگ رہے ہیں کہ بھائی اگر گورنر سندھ نے کوئی الفاظ کہے ہیں تو ویڈیو ہوگی نا، کوئی ویڈیو ہوگی، کہیں کوئی الفاظ ادا کیے ہوں گے، گورنر سندھ کے الفاظ ہیں، گورنر سندھ نے بات کی سما ٹی وی سے اور دنیا کا عمران خان کے ساتھ، دنیا کا عمران خان صاحب کے کلپ ہم نے دیکھا ہے، اس پہ انہوں نے کہا کہ جی میں اپنے آپ کو بلیم کرتا ہوں، گورنر سندھ نے کہا کہ مجھے ان غریب مستحق مسکین لوگ جن کا حق کچھ لوگ کھا رہے تھے، میں تفصیل اس کی آگے جا کے بتاؤں گا، اس کی وجہ سے مجھے جانا پڑا اور شاید میں فاصلہ نہیں رکھ سکتا۔ انہوں نے کہا ایک بڑے پن کا ثبوت دیا ایک شخص جو اس وقت کورونا جیسے موذی مرض سے مقابلہ کر رہا ہو، گورنر سندھ عمران اسماعیل، عمران خان کا ایک سچا ٹرینڈ سپاہی، انہوں نے کہا کہ میں اپنے آپ کو بلیم کرتا ہوں۔ تو کھوڑو صاحب آپ کو شرم آنی چاہیے تھی، چانڈیو صاحب آپ دونوں بزرگ ہیں مجھ سے، میں آپ لوگوں کو لیکن میں کہوں گا، میں تمیز میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کو شرم آنی چاہیے تھی، تھوڑی سی حیا کر لیتے آپ کہ پہلے تصدیق تو کر لیتے۔ وہ بات سارے فسانے میں جس کا ذکر نہیں، وہ بات ان کو بڑی ناگوار گزری ہے۔ اور اس کے بعد میں اکثر کہتا ہوں کہ جی کسی نے کہا کہ جی کتا کان لے گیا، کان کو دیکھا نہیں، کتے کے پیچھے دوڑ پڑی۔ یہ وہ لوگ جنہوں نے تصدیق نہیں کی، پیپلز پارٹی کو تو پتا تھا، انہوں نے تو مینیج کیا۔ ہم کل سے ویڈیو ڈیمانڈ کر رہے ہیں، بتاؤ گورنر سندھ کی ویڈیو اگر کوئی ہے، اگر نہیں ہے تو نثار کھوڑو صاحب کو مرغا بن کے 10 اٹھک بیٹھک لگانی چاہیے میڈیا کے سامنے۔ انہوں نے میڈیا کو، اور میں خاور حسین صاحب موجود ہیں، میں ان سے سوال کرتا ہوں، مجھے بتائیے آج ٹی وی پہ جو ٹکرز ہیں کیا اس کی کوئی ویڈیو موجود ہے آپ کے پاس؟ یہ خاور حسین صاحب میں شکر گزار ہوں، انہوں نے بھی کہا ہے کہ آج ٹی وی سے بھی جب سوال ہوا تو آج ٹی وی نے کہا ہے کہ بھائی یہ ویڈیو تو چلی نہیں ہے، اس کا مطلب ہے کہ ڈرامے بازی ان کو اپنے پیڈ، کچھ انہوں نے اپنے پیجز بنائے ہوئے ہیں، کچھ انہوں نے اپنا ڈیجیٹل میڈیا بنایا ہوا ہے۔ پیپلز پارٹی پرفارمنس ختم ہو چکی ہے، اب صرف الزام تراشیاں، جھوٹ اور اپنے یہ چھٹل کارتوس انہوں نے پالے ہوتے ہیں۔ تو میں کہتا ہوں نثار کھوڑو صاحب کو 10 اٹھک بیٹھک کان پکڑ کے لگانی چاہیے، اور وہ جو حیدرآباد میں بزرگ بیٹھے ہیں ان کو بھی لگ رہا ہے طبیعت ناساز ہے، ان کو بھی مرغا بن کے اپنی معافی مانگنی چاہیے اور ان کو بھی اٹھک بیٹھک لگانی چاہیے۔ میں اور کوئی نہیں کہہ سکتا گندے الفاظ، میں کہہ سکتا ہوں کہ آپ نے کل شام سے ہیجان پیدا کر دیا۔ وزیر اعظم ایک عظیم وزیر اعظم جس کو پوری دنیا امت مسلمہ کے ساتھ پوری دنیا کا عظیم وزیر اعظم ہے، جس نے اس وقت میں عمران خان نے اس وقت میں
एक 22 करोड़ पाकिस्तानियों को तनहा नहीं छोड़ा है। इमरान खान वो वजीर आजम है कि जिसने सबसे पहले 1200 अरब का पैकेज लेकर आया। इमरान खान वो वजीर आजम है जिसने गरीबों के लिए 144 अरब रुपए रख दिए और अभी 75 अरब रुपए और रख दिए गए हैं जो लेबर बेरोजगार होंगे उनके लिए। 3-3 माह की बिजली के बिल सरकार अदा करेगी अगर जो कारोबार शुरू करना चाहेगा। सिंध हुकूमत को दिए जाने में सबसे पहले $1 करोड़ सिंध हुकूमत को IMF वाले दिए कि जाओ काम करो। PPEs, अस्पतालों के सामान, तमाम 202 अस्पतालों के सारे सामान सिंध हुकूमत को फेडरल गवर्नमेंट ने मुहैया किए। कल बिलावल भुट्टो जरदारी, मैं आपके लिए कुछ नहीं कहूंगा, हम ट्रेंड लोग हैं अपनी पार्टी के, हम किसी जमात के कायद के लिए घटिया जमात इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन मैं कहता हूं भुट्टो साहब ये किधर है? ये काविश, KTN, सिंध TV, टाइम न्यूज, अब इनसे बात करो ना यार, अपनी लोगों से बात करो सिंधी जबान में। तुम BBC में बात कर रहे हो तो अंग्रेजी में, पता नहीं किसी को BBC में। कोई तुम्हारे पास वो बेचारा खुद बेचारा अभी क्वारंटाइन से निकल के आया वजीर आजम, वहां का वजीर आजम ब्रिटिश का। आप BBC से बात करके पाकिस्तान को बदनाम करते हैं। आप बात करें, जाएं KTN को, टाइम को, सिंध TV को बुलाएं, इनसे बात करें, सिंध के अवाम को देखें तो सही, तो आपको पता चले कि सिंध में किया क्या है आपने। BBC पे बात करके बिलावल भुट्टो, बिलावल जरदारी पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूँ बिलावल साहब, बाहर तो निकलो यार, आप तो नौजवान हैं माशाल्लाह, यंग है माशाल्लाह, आपकी इम्यून सिस्टम भी हाई होकर निकले, अपने लोगों से जाके मिले, पूछे किसको राशन मिला, किसका इलाज हुआ, किसके घर में भूख है, किसके घर में परेशानी है, किसके घर में बीमारी है, पूछे ना, निकलिए। और ये जो वजीर आला साहब आपने माशाल्लाह जबरदस्त एक्टर, मैं कहता हूँ इससे बड़ा एक्टर मैंने नहीं देखा इनको, तो इसके बाद मुस्तकबिल ताबनाक है वजीर आला सिंध का। मैं समझता हूँ ये बेहतरीन फिल्मों में काम कर सकते हैं, ड्रामों में काम कर सकते हैं, कहीं हाथ जोड़ के, कहीं आंसू बहा के। अरे निकलिए तो सही, आप ही निकल पड़िए। एक दिन जहाज में थक कर जाते हैं, तस्वीर खिंचवाते हैं, जाओ और इन लोगों को ये जो हल्कों से भागे हुए, हल्के छोड़ के भगोड़े MP MNS, पीपल पार्टी के भगोड़े भागे MP MNS जेके निकतल हल्कन में भजिया पुछोस वञे कि राशन ॾिनो आहे, कुछ मिलियो आहे, बीमार आहे, ठीक आहे, खैरियत में आहे। MP MNS पीपल पार्टी के भगोड़े। हम भी इंसान हैं, हमें भी अपने बच्चे प्यारे हैं, हम भी अपने खानदान को प्यारे हैं, हमें भी हमारे दोस्त प्यारे हैं, अपने दोस्त अहबाब को हम भी प्यारे हैं। हमारे पास कोई कोरोना फ्री बॉडी नहीं है हमारी, हम इसलिए निकलते हैं। रात को देखते हुए हमारे सारे MP MNS, इन्होंने हजारों, आफ्ताब सिद्दीकी साहब ने सिंध हुकूमत से ज्यादा राशन इन्होंने बांट दिया होगा अपने तौर पे, ऐसे लोग भी हैं। मैं कहता हूँ चैलेंज कर दो आफ्ताब सिद्दीकी बामुकाबला मुराद अली शाह, ज्यादा राशन आफ्ताब सिद्दीकी साबित करेंगे। वजीर आला ने तो खा गया, सारा पैसा खा गए, राशन के अरबों रुपए खा गए। 9 का पेट भरता है, 9 का पेट फटता है। मैं कहता हूँ अपने MP MNS को भेजें अवाम में, चेक करें अवाम क्या कहती है। मैं मिलकर आया हूँ, हम जाते थे 12,000 वाले सेंटर में, पैसे मिले, वो कहते थे पैसे तो मिल गए, राशन नहीं मिला। हम कहते राशन क्यों नहीं मिला? कहने कैसे पता दिनों ही कौन दिया ही नहीं। मैं कहता हूँ जो राशन इस वक्त में भी राशन खाएंगे, और कभी अगर फोटो सेशन के लिए राशन दिया भी, अगर फोटो सेशन के लिए दिया भी 10 साल पुराना कीड़े ज़ुदा, वो नाम जो खुद ही इन्होंने जाना, इन्होंने पढ़ा, मतलब अगर कहीं दिया भी तो सड़ा हुआ राशन। आपने सिंध के लोगों को क्या दिया? और मैं बात चाहूंगा, आजकल दौर चल रहा है नादिर शाही फरमानों का और नादिर शाही ऑर्डिनेंसेस का। नादिर शाही फरमान पिछले दिनों जारी हुए थे कि भाई मोटरसाइकिल पे जो निकले डबल सवारी का बंद कर दो इसको। अगर बेचारा कोई डबल सवारी पे निकलता था, उसको उठा के मोबाइल में डालते थे, बेचारे पुलिस वाले भी परेशान, उनको भी 4 लोग होते थे, 5 और घुसेड़ देते थे, पुलिस वालों को भी कोरोना लगवा ली और उनको भी लगवा दी, ले जाके थाने में बंद कर दिया, उसके बाद जेल भिजवा दिया, कोर्ट में गए, लंबी एक रस्सी में बांध के 100 लोगों को लेकर गए। ये कोरोना इन्होंने खुद फैलाया आप लोगों ने। कोई मजबूरी में निकलता कोई नहीं, जिसके घर में पेट में हो ना आपका भरा हुआ पेट, जैसे आप सीमाओं से बाहर नहीं निकलते, कोई पेट भरा हुआ बाहर नहीं निकलता, आप सबके पेट भरे हुए हैं। कोई अपने दबना मिनिस्टर घर से निकले ना CM अपने ऑफिस से निकले, गरीब अपने बच्चों की रोजगार के लिए, उसकी रोटी के लिए, उसके दाने के लिए, उसके सालन के लिए बाहर निकलता है, उसको आपने पकड़ना शुरू किया। फिर एक और नादिर शाही फरमान आया, खवातीन को भी बंद कर दो, खवातीन को साथ भी मोटरसाइकिल हो तो इजाजत नहीं है, मरीज को भी इजाजत नहीं है। अगर कोई खातून मरीज है तो कहाँ जाए? अब जी ऑर्डिनेंस आ रहा है, वह क्या कहने हैं,
मतलब पराए माल पे अपनी बादशाही। ऑर्डिनेंस में फरमाते हैं कि बिजली का बिल कम कर दो, छूट दे दो बिजली का बिल। भाई किसने देनी है? वफाकी हुकूमत ने। आपकी जेब से क्या गया? अंगूठो। गैस के बिल में छूट दे दी हमने। अरे भाई तुम्हारे पास से क्या गया? क्या तुमने सब्सिडी दी? 15,000 अरब रुपए पिछले 12 साल में इनके पास आए हैं। 15,000 अरब। गैस के बिल छोड़ दिया भाई तुम्हारा। अब मैं आफ्ताब भाई का टोपी लेके आपके हवाले कर दूं, इनका इमरान भाई का आफ्ताब भाई की चश्मा लेके आपका, मेरा क्या जाए? अपना चश्मा दूं, अपनी बास्केट दूं, अपना कुछ दूं ना। भाई गैस छोड़ दिया, बिजली छोड़ दी। उसके बाद एक और चीज, किराएदार किराया ना दे। मतलब इसका मतलब है मालिक मकान से लड़ जाए। मैं कहता हूं बिल्कुल किराएदारों को छूट मिलनी चाहिए, लेकिन मालिक मकान को सब्सिडी दे दे। ये चाहते हैं कि किराएदार और मालिक मकान आपस में तस्त गिरबा, लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाए। आपकी जेब से क्या गया तो मालिक मकान की जेब से गया। उसके बाद इन्होंने कहा कि जी फैक्ट्री से कोई किसी मजदूर को ना निकाले। बिल्कुल नहीं निकालना चाहिए, बिल्कुल नहीं। क्या फैक्ट्री वालों को बेनिफिट आपने कोई सब्सिडी दी? उनको कोई बेनिफिट दिया? मतलब उनको भी लड़ा दिया आपने। हाजिर को अजीर से, मजदूर को मालिक से, दनादन मस्त कलंदर लग जाओ। आपने शर फैलाया। मुराद अली शाह साहब, ये ऑर्डिनेंस जो आप ला रहे हैं ये शर फैलाने के लिए। शर और माफ क्या किया? हातम ताई की कब्र पे लात मार दी, पानी का बिल माफ कर दिया। जो वैसे 50 रुपए, 100 रुपए, 200 रुपए, 300 रुपए आता है, पानी का बिल कितना ज्यादा आता है। पानी का बिल आगे कर दिया आपने वाटर बोर्ड का। और उसके अलावा जुर्माने लेंगे 10-10 लाख रुपए। कोरोना का मरीज अगर किसी को हाथ लगा दिया तो 2 से 10 लाख रुपए जुर्माना होगा। एक पहले बेचारे के घर में परेशानी, पहले बेचारा मुसीबत में, कोई खुद से नहीं निकलता। शाह साहब, ये आप जैसे पेट भरे लोगों का काम है कि घर से बाहर निकले, कोई खुशी से नहीं निकलता। आपने कहा कि जी कोरोना का मरीज किसी के जाएगा उसको 10 लाख जुर्माना 2 से। और ये SOPs तहकीकात हो रही ना FIA के अंदर, बड़े बड़े पर्दा नशीन बेनकाब होंगे। मेरा नाम भी लिखा है। अभी देखिएगा क्या कुछ निकलता है इसके अंदर। बड़े बड़े ये SOPs के नाम पे भत्ते स्टार्ट, धंधा स्टार्ट, दुकानदार। अब SOPs इन्होंने लॉकडाउन, इन्होंने लॉकडाउन था, मईशियत को लॉकडाउन कर दिया इन्होंने। सिंध हुकूमत ने हमारी मईशियत को लॉकडाउन कर दिया और तो कुछ नहीं हुआ। पूरे सिंध में चलिए जहां चलिए लॉकडाउन पे कोई कार्रवाई शुरू नहीं हुई। और उसके बाद तो ऑर्डिनेंस, मैं समझता हूं कि इसके अंदर ऑर्डिनेंस नहीं होने चाहिए जिसका कोई बेहतर रिजल्ट ना आए। राशन 3 रोज पहले मोहतरम सईद गनी साहब फरमाते हैं कि हमने राशन देना बंद कर दिया। अरे भाई सईद भाई, वजीर आला साहब, जरा बताओ तो सही, शुरू कब किया था? राशन अगर बंद कर दिया तो शुरू कब किया था? चवंदा राशन असा बंद करे छॾियो। बाबा शुरू करे कयो, बुधायो तो सही, के दिनों केर खाई हो, के सप्लाई कयो। राशन बंद कर दिया। पहले फरमाते हैं कि जी हमने, आपको पता होगा 20 लाख का इन्होंने ऐलान किया था 22 मार्च को। 20 लाख को तो क्या देते, कहा 3.5 लाख को दे। परसों सईद गनी साहब फरमाते 15 लाख को मिल गया। भाई 1500 लोग मुझे सिंध में बता दो। शनाख्ती कार्ड नहीं, वो तो आपका सिस्टम है, जिसने चाहे वो तो आप पूरे 6 करोड़ शनाख्ती कार्ड भी दिखा सकते हो। आप हाथ की सफाई आपको आती है। 1500 लोग सिंध में बता दो, गरीब लोग जिनको साफ सुथरा राशन मिला हो। तो राशन का भी ड्रामा बेनकाब हो गया। अरबों रुपए राशन के अंदर ये लोग खा गए हैं। रात के अंधेरे में ये लोग फबा गए हैं। रात के अंधेरे में इन्होंने, गरीब आवाम आज भी भूखी है, प्यासी है, घर में उसके राशन नहीं है। सिंध हुकूमत उनसे बिल्कुल परेशान है। अब आते हैं हॉस्पिटल्स। जब इन्होंने लॉकडाउन किया था, हमसे इन्होंने वादा किया था मीटिंग के अंदर, लॉकडाउन वाले फैसले में ये नाचीज भी साथ था, फिरदौस भाई भी साथ थे, गवर्नर साहब को भी ऑन बोर्ड लिया था। इन्होंने कहा था हम हर हॉस्पिटल में, मतलब कोई मरीज होगा कॉल करेगा, घर पे जाके टेस्ट लेंगे। दीगर कोई कोरोना का मरीज होगा उसका भी टेस्ट लेंगे, मरीजों को इलाज करेंगे, एम्बुलेंस देंगे। हॉस्पिटल सूरत हाल ये है, जिना हॉस्पिटल के वार्ड नंबर 23, थैंक यू समा टीवी ने जो ये 3 रोज पहले सोशल मीडिया पे वीडियो आई तो कोई मानने को तैयार नहीं था। कह रहे थे ये पंजाब है, KP है, ये है, वो है। अरे भाई 18वीं तरमीम में तोहफे में मिलने वाले अस्पताल हैं, सिविल, जिना, ये सारे, जिनको आप बोलते तो नहीं थकते हो। वार्ड नंबर 23 से एक नौजवान 3री मंजिल से छलांग लगा देता है, इसलिए कि उनको कैद कर, लाशों को
डेड बॉडीज और मरीज एक साथ बंद पड़े हैं। शर्म होनी चाहिए। कहाँ है आपकी हेल्थ के जिम्मेदारान? लाशें और मरीज इस जिना अस्पताल के वार्ड नंबर 23 में एक साथ बंद। इलाज करने वाला कोई नहीं, दवाई देने वाला कोई नहीं, पूछने वाला कोई नहीं, और इसी दौरान एक मरीज तीसरी मंजिल पे जाके छलांग लगा देता है। मैं कहता हूं इसके कत्ल का मुकदमा उन जिम्मेदारों के खिलाफ बनना चाहिए जिन्होंने जिना हॉस्पिटल को मकतलगाह बना दिया। बातें बड़ी करते हो, बातें बड़ी करते हो, हमने लड़ना है, हमने ये करना है, हमने ऐसा हो गया, सारे देर खौफ फैला के। मुराद अली शाह लेना क्या चाहते हो? मुझे मैं पहले हेल्थ को फिर मुझे बताना चाहता हूँ, मुझे एक बदबू आती है मुराद अली शाह की सारी कैंपेन में। पीपल्स पार्टी हमारी हुकूमत को नाकाम करने के चक्कर में खुदा न खास्ता पाकिस्तान को नाकाम करना चाहती है। वो चाहती है हमारी मईशत तबाह हो जाए, इमरान खान फेल हो जाए, और उसके बाद एक ही ये मॉडल पीस बच जाए जिसको कहेंगे ये देखो हमारे पास फ्रेश पीस है, इसको बना लो कहीं। वो दिन नहीं आने के। एक साजिश के तहत, चूंकि कराची माशी हब है, मैं बड़ी बात करने जा रहा हूँ आपसे। कराची माशी हब है, इस सूबा सिंध से जिसका हेडक्वार्टर कराची है, पूरा पाकिस्तान चलता है। कराची को जाम करके पाकिस्तान को जाम करने की कोशिश की थी सिंध हुकूमत ने। वो तो सलाम है मेरे कप्तान को, सलाम है वजीर आजम पाकिस्तान ने, जिसने देख लिया दूर से और बिजनेस कम्युनिटी को बहुत वो दिए, पैकेजेस दिए 1200 अरब का कि जी जाओ बंदों को नौकरी से ना निकालो, हम आपको लोन दे देते हैं, जाए आपको क्या चाहिए, कंस्ट्रक्शन खोलें, आपको हम पैसे देते हैं, हर बेनिफिट। नहीं तो ये कराची के जरिए पूरे पाकिस्तान को जाम करना चाह रहे थे। इमरान खान को नाकाम करते करते इन्हें लोगों की मौत की परवाह। इमरान खान को नाकाम करने के लिए जो ड्रामा किया, ये जो शोर मचाया मुराद अली शाह ने पहले दिन से, हाय 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 400 लोग मर गए। अच्छा पोस्टमार्टम होता नहीं था, कहता फेफड़े कोरोना जैसे हैं। मुराद अली शाह साहब अंदर घुसे थे कि इंसान क्या, कि आप ये भी बता दिया 400 लोग मर गए। मतलब एक दिन कहा कि पूरी दुनिया से ज्यादा हमारे जो है वो क्या कहना चाहिए मरीज रेशो सबसे ज्यादा आ गई। फिर कहा 400 लोग मर गए। हॉस्पिटल जिना अस्पताल का मैंने बताया, सिविल हॉस्पिटल में महा जमशेद खान नामी बच्ची 26 साल लड़की, मर्दों को वार्ड में डाल दिया, मर्दों के साथ। उसकी भी रिपोर्ट चली है, ये रहा 92 ने जाके क्लियर किया। भाई हमें तो इज्जत बचाने के लिए आप लोगों का सहारा लेना पड़ता है, इन कैमरों का और आप साफियों का। हमें तो 2 मिनट में झूठा कहते हैं। उन्होंने कहा ये हलीम आदिल ने केपी की वीडियो डाल दी। 92 ने जाके बताया कि जी ये तो कराची की खातून है, मर्दों में रखा हुआ था। उसके बाद अस्पताल में हैदराबाद में साईं चांडियो साहब चिराग तले अंधेरा, इल्जाम तो लगा रहे तुम्हारी अपनी कौम के, तुम्हारे जानने वाले हैदराबाद के 2 चांडियो भाई, एक को हार्ट अटैक होता है, दूसरा लेके अस्पताल जाता है। वहां जाते कहते तुम्हें तो कोरोना शक्ल से लग रहा है। बेचारों को दोनों को, तीमारदार को और बीमार को सिविल अस्पताल के वार्ड में डाल देते हैं। वो 2 रोज चीखता रहता है, मदद के लिए पुकारता रहता है, लेकिन उसको हार्ट फेल हो जाता है, मर जाता है एक चांडियो नौजवान। बाद में उसकी रिपोर्ट आती है नेगेटिव होती है। मैं कहता हूँ डूब नहीं मरना चाहिए आपको। सिर्फ 3 अस्पताल बताए हैं, पूरे सिंध का हाल बताइए, आपकी सेहत का हाल। उसके बाद मैं कहना चाहूंगा ऑनलाइन ये नया ड्रामा बना लिया, ऑनलाइन बिजनेस होगा। पकौड़े वाला का ऑनलाइन अकाउंट खुला हुआ होगा, ठेले वाले का सब्जी कद्दू चाहिए ऑनलाइन मसूमर साहब कॉल करेंगे, पकौड़ा चाहिए साईं हमारे जो है वो उसको ऑनलाइन उसको अपील भिजवाएंगे, वो रिक्वेस्ट भेजेंगे। ऑनलाइन बिजनेस, गरीब दुकानदार छोटी छोटी दुकानों वाले उनके ऑनलाइन किधर है? आपने ड्रामा बना दिया कि हमने ऑनलाइन, किधर है वो बेचारे अतीक मीर साहब, प्राचा साहब, पूना वाला साहब, वो सब लोग शोर मचा रहे हैं। और वो रिजवान कि जी हमारे पास तो फायदा नहीं हो रहा, इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान कैसे ऑनलाइन खुलेगी? बाकी वो कहीं परवाही नहीं है उसकी, मुर्गे लड़ने हैं तो लड़वा लो। ऑनलाइन के नाम पे एक ड्रामा शुरू किया, ढकोसला स्टार्ट किया। और उसके बाद मैं कहना चाहता हूँ कराची शहर के इन्होंने, हैदराबाद के लाड़कान शहरी इलाकों के हजारों नौजवानों को इन्होंने FIRs काट के क्रिमिनल रिकॉर्ड बना दिया उनका। हजारों नौजवानों का इस परेशानी के हाल में, भूख में, बदहाली में, परेशानी में जब वो निकले तो उन्हें मुलजिम बना दिया गया। तो मैं समझता हूं कि ये दुश्मनी की गई है। और जो भत्तेबाजी की खबरें चल रही हैं क्यों हमें सच लगती हैं? इसलिए कि आपका रिकॉर्ड ऐसा है। आपने इस शहर में लियारी गैंगवार बनाई, आपने इस शहर में लोगों को लियारी गैंगवार के जरिए जो कुछ किया, और आपके लीडर्स जाके उसके बाद बैठते देते रहे। इसलिए हमें भू आती है कि ये जो बेचारा वो तब्बा साहब को बंद कर दिया,
हमाद पूना वाला को गिरफ्तार कर लिया, फैक्ट्री ओनर्स को आपने गिरफ्तारियां कर दी। मैं पूछना चाहता हूं आपके अगर जिना अस्पताल में ये नौजवान मर गया, क्या किसी जिम्मेदार को, किसी मिनिस्टर को, किसी सेक्रेटरी को गिरफ्तार नहीं होना चाहिए? क्या ये जो जिस अंदाज से लोगों ने छलांगे लगा लगा के अपनी बेचारे जानों से चले गए, क्या उन्हें गिरफ्तार नहीं होना चाहिए? दूसरी जानिब में आता हूं, एक तरफ सिंध हुकूमत की नाअहली, इन्होंने अभी तक 1 रुपए आउटसाइड दी बजट जाकर खर्च नहीं किया, उल्टे हमारे पैसे, हमारी तनख्वाहों के पैसे, अपने एमपीएच की तनख्वाहों के पैसे, अफसरान की तनख्वाहों के पैसे सारे हड़प कर गए। 3-4 अरब जो तनख्वाहों से इमदाद कोई नहीं दे रहा इनको, वो इमदाद तो चाबी दे के ले रहे हैं लोगों से। थोड़े बहुत किसी ने कोई एतमाद नहीं कर रहा इनके ऊपर। इमदाद वो देता है, डोनेशन वो देता है जब पता हो इमरान खान जैसा लीडर पीछे खड़ा हुआ है। आपको कौन देगा? आप तो गंदा राशन दे रहे हो, राशन दे नहीं रहे हो। तो मैं कहना चाहता हूं कि फेडरल गवर्नमेंट ने 1200 अरब का पैकेज एक दिया, सिंध को स्टार्ट में IMF के जरिए $1 करोड़ दिए, 1.5 अरब रुपए बनते हैं। 144 अरब रुपए इमरान खान ने गरीबों को दिया और अभी 70 अरब और शुरू होने वाले। जो लेबर जो बेरोजगार हो रहे हैं, 70 अरब, 144 अरब और 70 अरब, ये हो गए सर कितने? मेरा मैथ ठीक है जरा, 144 और 70 तकरीबन 200 अरब से ज्यादा गरीबों को मिलेंगे 12-12 हजार रुपए करके। और उसके बाद मैं कहना चाहूंगा कि वजीर इमरान इस्माइल क्यों गए? अब एक सवाल हर शख्स का सवाल है कि इमरान इस्माइल एहसास सेंटर्स में क्यों गए? मैं भी 3 दिन रहकर आया हूँ। हुआ ये था कि जब इन्होंने राशन नहीं दिया और लोगों ने इनको क्या कहना है जी, वो कहते हैं ना कि थुक बुझो करना शुरू करो, जब इनकी जरा खैरियत पूछनी शुरू की तो इनका तो फिर इन्होंने कुछ साबुनों के बच्चों साबुन थे, उस पर 10-10 लोगों ने तस्वीरें बनवाई। उसके बाद क्या हुआ, इन्होंने देखा 144 अरब में 34 अरब रुपए सिंध में आने, 34 बिलियन। इन्होंने कहा ये हम इसको क्या, पहले इन्होंने कहा कि हमें दिया जाए, हम बांटते हैं इस पर जाकर। इसमें SOP बनी। मैं आपको आज क्लियर करना चाहता हूँ कि जिम्मेदार किसकी है। SOP के अंदर 3 डिपार्टमेंट थे चांद भाई। एक सबसे पहले था जो एहसास का डिपार्टमेंट है, सानिया निश्तर, उनका काम क्या था कि वो 12-12 हजार रुपए का उसको बेनिफिशियरी को तलाश करेंगे, रजिस्टर करेंगे, उसके नाम के ऊपर UC वाइज भिजवाएंगे। बैंक का काम ये था कि बैंक उन डिवाइसेस के जरिए इंश्योर करेगा कि कैश मौजूद हो और उनके डिवाइसेस लेके लोग बैठे हुए हों। अब मैं जवाब देता हूं, इसका जवाब ये सारी पूरी टीम है इनकी, डिसइंफॉर्मेशन सेल जो है पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत का, मुझे जवाब दे, क्या ये सिंध हुकूमत ने लिखत में तय नहीं हुआ SOP नहीं है कि सेंटर्स अलॉट करना DC की जिम्मेदारी? DC मीन्स सिंध हुकूमत। सोशल डिस्टेंसिंग कराना डिप्टी कमिश्नर की जिम्मेदारी, डिप्टी कमिश्नर मीन्स सिंध हुकूमत। वजीर आला मैं नहीं हूं, मुराद अली शाह। सिंध हुकूमत की जिम्मेदारी सोशल डिस्टेंसिंग कराना, लाइनें लगवाना, रश कम, जो इल्जाम ये हम पे लगाते हैं। मुराद अली शाह साहब, आपने बड़े उस दिन कहा पैसे दो कोरोना ना दो। अगर आपको पता होता ना ये 12,000 से गरीब का घर चलता है तो आप ये ना कहते। हमने दिए पैसे, वजीर आजम इमरान खान की वफाकी हुकूमत ने दिए पैसे, बिलावल भुट्टो की सिंध हुकूमत ने दिया कोरोना। एहसास सेंटर्स पे अगर लाइनें नहीं लगवाई, जिम्मेदार बिलावल भुट्टो की सिंध हुकूमत है। एहसास सेंटर्स पे अगर सोशल डिस्टेंसिंग नहीं हुई, जिम्मेदार बिलावल भुट्टो की हुकूमत सिंध हुकूमत है। इमरान खान ने तो अरबों रुपए भिजवा दिए, इमरान खान ने काम कर दिया, सिंध हुकूमत की थी, डिवाइड था। हबीब बैंक का अपना काम था, एहसास का अपना काम था, सिंध हुकूमत का अपना। सिंध हुकूमत अपना काम नहीं किया और हमें पता चला पीपल्स पार्टी ने अपने बैनर लगाकर, अपने जाले खड़े करके उन गरीब 12-12 हजार वालों से भत्ते लेने शुरू कर दिए। वहां जाके बैनर लगा दिया ये कि बाबा अच्छो आओ आओ हम दे रहे हैं, अच्छो 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 अच्छो। उनसे कहीं 2,000, कहीं 3,000, कहीं 1,000, कहीं 500, बाकायदा जियाला फंड कायम हो गया सेंटर्स के ऊपर। भाई पैसे वफाक दे रही है, इमरान खान तस्वीर लगा नहीं रहा, आपने किस चक्कर में लगाया? उनको लूट मार करने के लिए इन्होंने वहां अपनी दुकान लगाई। और इमरान इस्माइल गवर्नर हाउस में बैठ सकते थे, कोई जरूरत नहीं पड़ी थी निकलने की, सुकून था, आइसोलेशन भी थी, डिस्टेंसिंग भी थी। लेकिन जब देखा कि मेरे सिंध की बेटियां, मेरी माएं, मेरे भाई, मेरे मजदूर, उनके साथ डाकू उन पे चपट पड़े हैं, ये जियाले उन पे लपट पड़े हैं उनसे लूटने के लिए, इमरान इस्माइल गए ताकि गरीब को उसका हक दिलवा सके। सेंटर्स की, फिर मैं भी 3 दिन अंदरून सिंध रहा था, मुख्तलिफ सिंध के मुख्तलिफ अजला में। हमने गए तो हमने CS साहब और IG साहब से कहा था कि बैनर हटवाइए,
جب عمران خان اور پی ٹی آئی اس کو نہیں کلیم کرنا چاہ رہی ہے، ٹیکس پیئر کا پیسہ ہے، غریب کا پیسہ ہے، اس کا حق ہے، جاؤ آپ بینر کیوں لگا؟ آپ سب نے دیکھا بینر لگا، بینر کیوں لگائے گئے تھے؟ بینر کے نیچے کیمپ لگا تھا، کیمپ کے اندر بھتہ خور بیٹھے تھے، بھتہ خور ہی وہاں سے پیسے لے رہے تھے۔ عمران اسماعیل حق دلانے کے لیے گئے تھے، فوٹو کھنچوانے کے لیے ہر روز آپ لوگوں کو بلوایا جا سکتا ہے گورنر ہاؤس میں۔ میں سمجھتا ہوں سلام عمران اسماعیل، سلام عمران خان، اور جنہوں نے عمران اسماعیل کے خلاف کل سے بیان بازی کر رہے ہیں انہیں شرم آنی چاہیے۔ اس کا جواب یا وزیر اعلیٰ ہاؤس دے سکتا ہے یا پریزیڈنٹ ہاؤس دے سکتا ہے، ہمیں کیا پتا، ہمیں کچھ نہیں پتا۔ وزیر اعلیٰ صاحب سے پوچھیے یا صدر صاحب سے پوچھیے، ہمیں کیا پتا بھائی، ہم کس کھیت کی مولی، ہمیں کیا پتا۔ پہلے تو میں ذرا یہ نثار خوروں کے حوالے سے بات کرنا چاہوں گا کہ جب بھی آپ بات کرتے ہیں سندھ کے حقوق کی، جب آپ بات کرتے ہیں کہ سندھ میں تعلیم کی، جب آپ بات کرتے ہیں سندھ میں ہیلتھ سروسز کی، جب آپ بات کرتے ہیں سندھ میں پانی کی اور تمام سروسز کی، تو فوراً جو ہے پیپلز پارٹی سندھ کارڈ پلے کرنا شروع کر دیتی ہے۔ اگر جس طرح گورنر صاحب گئے اور گورنر صاحب گئے تھے ہمدردی میں لوگوں کے پاس، اور گورنر صاحب کی کوئی ویڈیو بھی سامنے نہیں آئی، تو یہ تو ایک سندھ کارڈ پلے کیا ہے ان لوگوں نے۔ جب بھی ان کی اکاؤنٹیبلٹی کی بات ہوتی ہے تو سب سے پہلے جو نا یہ سندھ کارڈ پلے کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ہم اس کی پی ٹی آئی پرزور مذمت کرتی ہے اور نثار خوروں سے مطالبہ کرتی ہے کہ یہ اپنے الفاظ واپس لیں، کیونکہ آسمان پہ تھوکنے سے آسمان کا کچھ نہیں ہوتا، تھوک اپنے منہ پہ آتا ہے۔ پرائم منسٹر کو سب جانتے ہیں کہ ان کی ایجوکیشن کیا ہے، ان کا اسٹیٹس کیا ہے، دنیا میں وہ آج مسلم امہ کے سب سے بڑے لیڈر بن کے ابھرے ہیں، اسی طرح پوری دنیا کو بھی لیڈ کر رہے ہیں۔ تو ایک تو یہ بات ہو گئی۔ دوسرا، لاک ڈاؤن کے حوالے سے ہمارے بڑے کنسرن ہیں۔ سب سے پہلے ضرور سندھ گورنمنٹ نے انیشیٹو لیا 26 فروری کو، 17 مارچ کو بلاول بھٹو زرداری اور سی ایم نے پریس کانفرنس کی، آپ سب گواہ، آپ لوگ وہاں پہ تھے سندھ اسمبلی میں، اور وہاں 20 سے 25 لاکھ راشن دینے کی بات ہوئی۔ کتنا راشن دیا آپ سب کو معلوم ہے۔ لاک ڈاؤن کا مقصد یہ ہوتا ہے، ساری دنیا میں اگر آپ لاک ڈاؤن دیکھیں، امریکہ میں جہاں 2000 ڈیلی کے لوگ مر رہے ہیں، 59,000 ڈیتھ ٹول ہو چکا ہے، وہاں پہ بھی اس قسم کا لاک ڈاؤن نہیں ہے۔ ہم نے ڈے 1 سے یہ کہا کہ اسمارٹ اینڈ لاجیکل لاک ڈاؤن ہونا چاہیے۔ اس لاک ڈاؤن کا مقصد یہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ تمام ادارے بند کر دیں۔ ہاں، جو بند ہونے چاہیے، پبلک پلیسز بند ہونی چاہیے، سینما بند ہونے چاہیے، شاپنگ مال، اسکول، کالجز، یونیورسٹی، یہ ساری بالکل بند ہونے چاہیے، ہم اس میں ساتھ ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو لاک ڈاؤن کا مقصد ہوتا ہے کہ آپ ہیلتھ فیسلٹیز امپروو کیجئے۔ ہیلتھ فیسلٹیز کیا امپروو ہوئی ہیں؟ آپ کا او پی ڈی بند پڑے ہیں تمام ہاسپٹل میں، 10,000 سے زیادہ سرجری جو ہیں وہ کینسل ہو چکی ہیں۔ عام بیماری جو ہے، جو تھیلیسیمیا کے پیشنٹ ہیں ان کو بلڈ کی شارٹیج ہو گئی ہے، جو اور سرجری اور ڈفرنٹ ٹائپ کی جو بیماریاں تھیں اس کا کوئی علاج موجود نہیں ہے۔ سب سے پہلے تو سندھ گورنمنٹ کو یہ کرنا چاہیے، کوارنٹین سینٹر عام کامن ہاسپٹل سے نکال کے باہر لے جانے چاہیے، جس طرح سیوک سینٹر میں بنا ہے۔ سیوک سینٹر کی بھی جو اطلاعات ہیں وہ یہی تھی کہ 9500 لوگ اس میں ایڈمیٹڈ تھے آج سے 10-15 دن پہلے، آج کا تو ڈیٹا میرے پاس نہیں ہے۔ تو ایک تو ہم یہ اس کی مذمت کرنا چاہتے ہیں جو تاجر برادری کے ساتھ کیا کہ ان کو ہتھکڑیاں پہنائی گئی۔ کیا وہ کرمنل تھے جو آپ نے ہتھکڑیاں پہنائی ان کو؟ اگر آپ نے اریسٹ کیا تھا تو آپ بغیر ہتھکڑی کے بھی تو لے جا سکتے تھے۔ تو یہ ایک بڑی زیادتی کی ہے، اسی طرح انڈسٹریلسٹ کے ساتھ زیادتی کی ہے۔ اور میں بالکل علیم بھائی کی بات سے متفق ہوں کہ کراچی کی اکانومی کو پیرالائز کیا گیا، اور پیرالائز کرنے کا مقصد ہے کہ آپ نے پاکستان کی اکانومی پیرالائز کر دی۔ اب میں چاند بھائی کے بات کا جواب دے دوں۔ جی، اصل جواب دیکھیں، ظاہر ہے میں NA-247 سے میرا تعلق ہے، میں نے اپنی کانسٹیٹوئنسی میں 37,000 راشن پلان کیے ہیں اور 37,000 راشن میرے پاس موجود ہیں۔ اس کے ساتھ میرے ایم پی ہے رمضان گھاچی 13,000، تو NA-247 میں
50,000 राशन हमने प्लान किया है, जिसमें से 20,000 राशन हम बांट चुके हैं। और ये आप लोग सब गवाह, आप भी तशरीफ लाए थे, कई हमारे साथ जर्नलिस्ट साथी तशरीफ लाए, उनको मैंने दिखाया। होता सिस्टम ये है कि हम वार्ड लेवल से अपनी लिस्टें मंगाते हैं और वार्ड और यूसी के हमने टाइगर फोर्स बनाई हुई है, और वो फोर्स हमें डेली बेसिस पे लिस्टें भेजती है। वो लिस्ट हम उस लिस्ट में उसका नाम, टेलीफोन नंबर, CNIC, कैटेगरी, नंबर ऑफ फैमिली, ज़कात का मुस्तहिक है क्या है, मजदूर है, बेवा है क्या है, ये हमारे ऑफिस में 20 लोग बैठे हुए हैं, राशन जो डिस्ट्रीब्यूशन सेल है, एक एक नंबर हम चेक करते हैं, और जब वो नंबर वेरीफाई हो जाता है तो वो लिस्ट हमारी चली जाती है डेटाबेस में, और वेयर हाउस से उनके घरों पे राशन जाता है। और उसके बाद दूसरा एक काम और होता है कि हम जब राशन डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं तो एक और टीम है जो बाद में फोन करती है कि आपको राशन मिला या नहीं मिला। आप लोग आइए और वो डेटाबेस देख लें। 20,000 लोगों का डेटाबेस मेरे पास है, और जब तक रमजान खत्म होगा तो इंशाल्लाह 35 से 40,000 लोगों का डेटाबेस होगा। एक चीज जो मैं आपसे अनाउंस करना चाहता हूं और जो मैं कर रहा हूं, इंशाल्लाह अल्लाह से दुआ है आप लोगों से भी उसमें कामयाबी अता करे। हम अडॉप्ट अ फैमिली का एक कॉन्सेप्ट शुरू कर रहे हैं, क्योंकि डेटाबेस मेरे पास है 35-40 हजार। जब लोग मेरे पास हो जाएंगे तो वो एक हम पोर्टल बनाएंगे, जो पोर्टल होगा अडॉप्ट अ फैमिली का पोर्टल होगा। उसमें हमारे जो डिजर्विंग लोग हैं उनकी डेटा होगा, और अगर आप किसी फैमिली को अडॉप्ट करना चाहते हैं तो आप उस पोर्टल पे जाइए, अपने आप को रजिस्टर कीजिए, वहाँ विंडोज खुल जाएंगी। उस विंडोज में आप राशन देना चाहते हैं, उसको स्कूल की मद में देना चाहते हैं, उसको हेल्थ की मद में देना चाहते हैं या कैश देना चाहते हैं, उसकी सारी डिटेल आ जाएगी। उसमें हमने मुख्तलिफ कैरियर से जो TCS है, बाइक है, उनसे बात कर रहे हैं, तो इसमें हमारा इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी। डायरेक्ट जो अडॉप्ट करेगा फैमिली को वो, और जो लोग डिजर्विंग है उनके दरमियान इंटरेक्शन हो जाएगा और उनको वो सपोर्ट करेंगे। ये सिलसिला कोविड का जो सिलसिला है, ये पेंडेमिक, ये अभी पता नहीं कब तक चलेगा, कब खत्म होगा। हमारी आपकी सबकी एनर्जी राशन के हवाले से 1-8 महीना 1.5 महीना और चल सकती है। तो हम एक ऐसा प्रोग्राम ला रहे हैं कि कोई भी आदमी अगर 1 लाख रुपए भी कमाता है तो 3,000 वो अफोर्ड कर सकता है किसी को देने के लिए। तो ये इंशाल्लाह अगले 10-12 दिन में मैं इसको पोर्टल को लॉन्च करूंगा, आप सबको बुलाऊंगा, आप देखिएगा। तो एक अडॉप्ट अ फैमिली, तो एटलीस्ट ये कि हमारी NA247 से हम ये शुरू करेंगे, और फिर अल्लाह ने तौफीक दी तो इसको पूरे कराची में लेके जाएंगे। मेरा ख्याल है कि फेडरल गवर्नमेंट ने तो रिलीफ दे दिया है ना। फेडरल गवर्नमेंट ने जो इस सारे ऐलानात किए बिजली के, पूरे पाकिस्तान के लिए किए भाई। 3-3 महीने का जो बिजली का बिल हम वो जो ऐलान हुआ है कल, वो भी सबके लिए है। और भी जितना रिलीफ दिया गया वो भाई फेडरल गवर्नमेंट ने ही दिया है। 144 अरब भी फेडरल गवर्नमेंट ने दिया आपको। बिजनेस कम्युनिटी को अगर को फायदा मिला है वो भी फेडरल गवर्नमेंट ने दिया है, इसमें सिंध के लोग बेनिफिशियरी है उसमें। एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात, लेबर वेजेस के हवाले से फेडरल गवर्नमेंट ने ये पॉलिसी दी है कि अगर आप अपनी लेबर को नहीं निकालें तो 3% के ऊपर फेडरल गवर्नमेंट बैंक के साथ जो है ना फाइनेंसिंग कर रही है, और ये फाइनेंसिंग 2 साल के बाद जो है ना आपको पे बैक करनी होगी, सिर्फ 3% के ऊपर। ये बहुत बड़ा इंसेंटिव है उन इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए, ताजिरों के लिए जो अफोर्ड नहीं कर सकते, वो बैंक से पैसे लें, अपने लोगों को पैसे दें, और 2 साल के बाद उनको पे बैक करना होगा। देखिए, मैं समझता हूँ हम तो यही चाह रहे थे। देखिए, स्वीडन एक मुल्क है, आपको पता है कि उसने लॉकडाउन नहीं किया। पता नहीं आपको मालूम है कि बहुत सारों को मालूम है, उसने कुछ भी नहीं किया और वो दोबारा खुल चुका है। उसकी रूटीन लाइफ स्टार्ट हो चुकी है। दुबई खुल चुका है, उसकी रूटीन लाइफ स्टार्ट हो चुकी है। अमेरिका ने, यूरोप ने, कई ममालिक ने अपनी चीजें ठीक कर दी हैं, जबकि अमेरिका में 55,000 लोग, हम 26 को और 27 को एक दिन आगे पीछे स्टार्ट हुए थे, वहाँ 56,000 लोग जो है वो बेचारे मर चुके हैं और लाखों लोग उसमें मुतासिर हुए हैं। अमेरिका खुल चुका।
इस यहाँ तो साजिश है, ये जो हर रोज सिंध हुकूमत पाकिस्तान के खिलाफ साजिश कर रही है, इतना खुदा न खास्ता 35% कम है जो कि एक लोगों ने मतलब एक जो ग्राफ बन रहे थे, अंदाजे थे, वो अल्लाह ताला का करम है, कोई किसी का कारनामा नहीं है। अल्लाह ताला बुजुर्गों बरतर काम पे एहसान है कि 27 रमजान को पाकिस्तान कायम हुआ, इसलिए हम कम हैं। उसको हम ख्याल करें, स्मार्ट लॉकडाउन करें, जहाँ प्रॉब्लम हो वहाँ करें, लेकिन जिस अंदाज से साजिश जी आपका गवर्नर जो है वो कोरोना में मुबतला है, आपका एक लीग असेंबली का उसके 8 घंटे से जो मेंबर है वो भी कोरोना में, कल 400 केस रिपोर्ट हुए। आप कैसे कह सकते हैं कि कोरोना जो है वो पाकिस्तान को जो है वो नुकसान पहुंचा है? देखिए, जितना बड़ा वज़ीर आला साहब ने एक दिन कहा कि जी पूरी दुनिया से ज्यादा हमारा रेशो आ गया, झूठ था। एक दफा उन्होंने खौफ फैलाने के लिए कहा कि 400 अमवात है, लगता है कि मरने वालों के फेफड़े जो है वो कोरोना से मिलते हैं, ये भी झूठ था। किसने कह दिया कोरोना नहीं है? कोरोना से लड़ना है, डरना डराना नहीं है। जितनी, मैं पूरी जवाब चाहता हूँ एक मिनट, कि जितना उसका असर है उतना बताइए, लेकिन ये ना हो कि कोरोना से बचाते बचाते हम भूख से मार दें, हम कोरोना से बचाते बचाते अफलास से मार दें। बड़ी अच्छी बात है खबर भाई कि हमें अच्छा लगता है, हमारे जिनके घर में रोटी है वो बैठ सकता है घर में जरा। अच्छा, डिसीजन मेकिंग में जितने लोग हैं, जितने लोग फैसले कर रहे हैं, उनका कोई वास्ता नहीं है। वो कच्ची आबादी में नहीं रहते, वो 8 फुट के कमरे में नहीं रहते। बड़े लोग जिनके घर पेट में खाना है, घर में एसी है, मजे हैं, उनको कर रहे हैं। तो इतना सूरत हाल खराब नहीं जितना खौफ फैलाकर खुदा न खास्ता माशी तौर पर गरीब को और मुल्क को तबाह किया जा सकता है। हलीम साहब, इस वक्त पूरी कौम कोरोना वायरस से मुकाबला कर रहे हैं, उस दौरान ये 18वीं तरमीम का जो बेवक्ती का रागनी है वो क्यों छेड़ी गई है, इसके पीछे कौन है? मेरा ख्याल है कि 18वीं तरमीम एक बहुत अच्छा डॉक्यूमेंट है। 18वीं तरमीम हम समझते हैं कि मजबूत सूबे, मजबूत वफाक की जमानत है, लेकिन वफाक को कमजोर करके सूबे भी नहीं चल सकते। अब जब पहली दफा देखा 18वीं तरमीम में, पहले माल होता था, ये पैसे दे दो, माल खपे माल खपे, हमने कहा ठीक है भाई, माल पेट भरो, चलो वफाक इनको देता रहा। अब जब पहली दफा यकजहती की बात आई, इस कोरोना जितनी बड़ी मुसीबत में जब तय हुआ कि फैसले किए जाएं, उस वक्त एक सूबा अपनी दुम लेके अलग खड़ा हो गया, अपने फैसले लेके अलग आ गया। लोगों को अच्छा, अगर सिंध ने तमाम सख्त फैसले किए, जी चांदा, इसके बाद सब फैसले करने के बावजूद क्या सिंध में तादाद कम होगी? नहीं, रेशों के साथ सबसे ज्यादा सिंध में है। मैं समझता हूँ 18वीं तरमीम अच्छा डॉक्यूमेंट था, लेकिन इसकी डिबेट नहीं हुई थी। ये फिर एक नादिरशाही डॉक्यूमेंट था कि जिसको बाहर बैठ के कमेटी ने डिसाइड किया और पार्लियामेंट में सबने पीछे से कह दिया, जरदारी साहब ने, नवाज शरीफ ने, हाथ खड़े करो, कर दिए। 18वीं तरमीम अच्छा डॉक्यूमेंट है, इसको असल रूह के मुताबिक इस पर अमल होना चाहिए। ना हम इसको खत्म कर सकते हैं, ना 2/3 है, ना खत्म करने जा रहे हैं, लेकिन बेहतरी की गुंजाइश हो सकती है और बेहतरी होगी। सर चांद भाई, मैं गंदम की बात कर दूं। गंदम की सूरत हाल ये है कि इस दफा 40% कम गंदम खरीदी गई है सिंध में। एक मरतबा और गंदम का बोरान मुझे आता हुआ नजर आ रहा है। 40% कम खरीद के प्राइवेट लोगों ने ज्यादा खरीद ली है, सरकारी गंदम नहीं खरीदी गई है। उसके बाद यही अपने परवरदा प्राइवेट लोगों से उसको खरीद के वापस ले आएंगे। वही तमाम लोग जो पिछले साल करप्शन में इन्वॉल्व थे, उनको दोबारा पोस्टों पे लगा दिया गया है। मैं समझता हूँ एंटी करप्शन के अंदर किसी किस्म की जो है तहकीकात नहीं हो सकती। वो ऐसा ही है कि मिट्टी पाओ, पर्दा डालो, एंटी करप्शन से कोई रिजल्ट नहीं आ सकता। बाकी जी, अल्टीमेटली ये होगा कि हम इसमें जिस वक्त हमारा ये पोर्टल लॉन्च हो जाएगा और फिर हम प्राइम मिनिस्टर का एहसास राशन जो प्रोग्राम है उसके साथ मर्ज करेंगे। अगर हो सका तो हम कर देंगे, वरना मैं अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में मैनेज करूंगा। आपका जो सवाल था 18 तरमीम के हवाले से, 18 तरमीम जब आई थी तो उसका मकसद था कि सूबे अपने आप को मजबूत करें, अपने रिसोर्सेज डेवलप करें और इंडिपेंडेंट जो है पॉलिसीज होनी चाहिए सूबों की, हेल्थ, एजुकेशन, पानी और तमाम सर्विसेज के हवाले से। अब जब हमने ये पेंडेमिक आया है तो ये देखा कि सूबे सिंध के पास वो रिसोर्सेज थी, वो सिंध ने उसको अपने
अपने आप को उस तरह अपग्रेड नहीं किया जो होना चाहिए था, तो हम ये समझते हैं कि 18 अमेंडमेंट में तरमीम होनी चाहिए। 18 अमेंडमेंट खत्म नहीं करने जा रहे हैं, और तरमीम की गुंजाइश तो हर वक्त मौजूद रहती है और वो हमें करनी चाहिए। मैं आपके सवाल को मैं आपको बता दूं, बराए करम एक अर्ज करूं, ये इख्तरा है या गाल गोलिया तवा के था। गवर्नर साहब ने बिल्कुल नहीं कहा कि उनको कोरोना वायरस कहां से लगा। गवर्नर साहब के किसी जुमले में नहीं है। उन्होंने ये जरूर कहा कि मैं इन सेंटर्स पर गया और उन्होंने एक बात जरूर की थी कि यहाँ सिंध हुकूमत को पूरे सूबे में अवेयरनेस के लिए कैंपेन चलानी चाहिए, इश्तहारात देने चाहिए, लोगों को बताना चाहिए। गवर्नर साहब ने कहीं नहीं कहा कि उनको सिंध के मुख्तलिफ इजला के दौरे के दौरान कहीं वायरस लगा है। कहीं एक जुमला दिखा दीजिए। ये एक बड़ी घटिया कैंपेन स्टार्ट की है, पीपल्स पार्टी ने मैनेज कैंपेन स्टार्ट की है। इसके ऊपर मैं कहता हूं कि उनको शर्म आनी चाहिए पीपल्स पार्टी में। गवर्नर साहब ने नहीं कहा और पता ही नहीं चल सकता कहां से लगा है। यहाँ से इंशाअल्लाह अल्लाह करेगा गवर्नर साहब फिर ठीक होंगे, फिर जाएंगे। मैं खुद जाऊंगा, हमारी सब टीम जाएगी। हम घरों में नहीं छुप सकते, हम अवाम के नुमाइंदे हैं, अवाम के बीच में रहना। जी सलमान भाई, सलमान देखिए, हम क्या होना था, क्या होगा, कैसे होगा, उस पर यकीन नहीं कर सकते। लेकिन ये आप ठीक कह रहे हैं। मैं तो कहता हूँ सिंध हुकूमत का लॉकडाउन से, कोरोना से, इसकी शिद्दत से कोई मुझे नहीं लगता कि उनकी पॉलिसीज उसको देख के बनती हैं। सिंध हुकूमत के घिनौने एजेंडे पे काम कर रही है, जिसको हम तलाश कर रहे हैं कि ये खौफ फैलाकर ये क्या हासिल करना चाह रहे हैं। तो हम उस घिनौने एजेंडे, सिंध हुकूमत और वज़ीर आला सिंध का जो कोरोना के साथ घिनौना एजेंडा है, हम उसको तलाश जरूर कर रहे हैं कि इनकी पॉलिसी आवाम को बचाने के लिए कुछ नहीं, आवाम के लिए कुछ नहीं, लेकिन मतलब हजारों अरब के बजट होने के बावजूद अस्पतालों में कुछ नहीं, फैसिलिटी कोई नहीं, लेकिन बातें बड़ी बड़ी तो कोई तो है जिसका पर्दादारी है। आखिरी सवाल भाई, आखिरी सवाल। ये चाह रहे हैं कि लोगों को सिंध हुकूमत की नाअहली है कि इन्होंने राशन नहीं दिया, इन्होंने टेस्ट उस अंदाज से नहीं किए, इन्होंने सिंध के लोगों को उस अंदाज से रिलीफ नहीं दिया, और सिर्फ बातें की तो उसकी ये अपने ऊपर से हटा के उसको डाइवर्ट करना चाह रहे हैं। और ये भी एक घिनौनी साजिश का एक हिस्सा है।